Okay, now chapter 4. Okay, economics, assumption of law of supply. So, what is it? Assumption of law of supply. Law of supply rests on certain assumption. There are several factors affecting supply of a goods at a particular point of time besides price. So, price के अलावा भी बहुत सारे जो factors है already we discussed yesterday. Okay, that is affected to supply. Okay. However, the law of supply assume the effect of all factors other than price as constant on the supply at a given point of time. Actually, some of the other factors can have more accelerating influence on supply than price. However, we assume that to be constant. Some important assumptions of law of supplies are price of factors of productions remains constant. There is no change in prevalent state of technology. Level of consumption remains the same. In other words, number of sellers in the market remains the same. Expectations regarding future price are ignored, held constant. Other factors like government policies, transport facilities, natural factor, etc., remains constant. So in this case, assumption of law of supply, all the factors are constant. Okay, only price are changing. Okay. So, however, the law of supply assumes the effect of all factors other than price are constant. Okay. So, in this case, the price will go up or down. Okay. And other factors all are constant. Okay. Example, price of commodity, level of technology, factors prices, expectations regarding future prices, other factors including government policies, transportation facilities, natural factors. Okay, all are constant. Okay, so there is no change. There is no change in other factors, but only price will go up and down. Okay, मेरी आवाज आपको आ रही clearly? Yes, sir. Okay. Now we see the schedules diagram of explanations of supply. Okay. A schedule showing a seller willingness. So here one example is given. To sell a goods at various price is called supply schedule. The following table shows a hypothetical example shows the willingness of a seller to sell applies at different prices. Okay. So here price is given and supply is given. Price is 40, supply is 200 kg. Price is 50, supply is 200 kg. So if price increase to from 50 to 60, supply increase to 400 kg. Okay. If price increase to 70, supply increase to 600. If price increase to 80, supply increase to 800. If price is increased to 90, supply increase up to 1000 kg. Okay. So here, when price increases, supply also increase. So here, if we draw this diagram on graph paper, the graph paper shows a line that is from left to right on upward direction. Okay, and supply always like this direction. When price is up, goes up, then supply also goes up. So it is always from left to right, from lower point to right hand side upper point. Okay, so that is a graph of supply. Now the explanation of graph is given in the above diagram. Price of supply is represented on y-axis and the supply of apples on x-axis, pointing the graph of the above tables A, B, C, D, E. Okay. So explanation is given. So already we discussed about that. Now second point is relationship between price and supply. Okay. So what is the relationship between price and supply? There is a positive relations between price and supply. Price goes up, supply goes up. Price goes down, supply goes down. So there is a positive relations between price and supply. Okay. So there are two reasons for positive relationship between price and supply. First is seller purpose, the object of profit maximization. And when price rises, they are they see the possibility of increased profit.
Thus they supply more at higher price. ओके सो पहले मैं आपको बताया था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सेलर है वो मोटिवेट होंगे सेल करने के लिए. जैसा प्राइस अप जाएगा सेल आपका जो सप्लाई वो बढ़ता जाएगा. ओके क्योंकि वो सेलर को पता होता है इसका मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकता है. ओके और मिनिमम प्राइस क्या हो सकता है. तो सेलर इज वेरी इंटेलिजेंट. ओके तो वो क्या करेगा वो थोड़ा थोड़ा बेचेगा. ओके वो एक ही साथ में सारा बेच नहीं देगा लोअर प्राइस पे. ओके उसको पता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे से वो उसका वो जो सेल है वो बढ़ता जाएगा. ओके सेकेंड पॉइंट इज गिवन व्हेन प्राइस राइजेस दोज प्रोड्यूसर्स who were not willing to sell their stock at lower price start selling the stocks. Okay so second point is given when price rises. Okay price उसकी बढ़ गई है. Okay those producers who were not willing to sell their stock at lower price start selling the stock. Okay और जो भी सेलर कम रेट पे सेल करना चाहता नहीं है और जैसे प्राइस बढ़ेंगे वैसे वो अपना सेलिंग स्टार्ट कर देगा. Okay so these 2 points are this relation between price and supply. Okay now change in supply. तो सप्लाई में चेंज कहाँ कैसे आता है. ओके the determin the determinant of supply are classified under two major categories as price and factors other than price. अभी प्राइस के अलावा कौन से जो फैक्टर्स है ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे. ओके सो दैट कैन इफेक्ट द सप्लाई. ओके तो प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो यस्टरडे डिस्कस कर चुके हैं कि वो डायरेक्टली सप्लाई को इफेक्ट करते हैं प्राइस के अलावा. व्हेन अदर फैक्टर्स आर assumed to remains constant and price is varied, there is an expansion and contraction of supply. तो जब सारे अदर फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहेंगे सिर्फ प्राइस बढ़ेगा अप डाउन जाएगा तो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा. ओके when price is held constant and other factors are varied there is a increase or decrease in supply. बाद में क्या होगा कि प्राइस है ओके वो नहीं हिल रहा है पर सारे अदर जो फैक्टर्स है वो हिल रहे. ओके तो क्या होगा इंक्रीज एंड डिक्रीज सप्लाई होगा. सप्लाई में क्या होगा इंक्रीज और डिक्रीज होगा. एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा इंक्रीज और डिक्रीज होगा. अंडरस्टैंड दिस. ओके एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन और सप्लाई. तो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा कि जब प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होगा तब क्या होगा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा. तो अभी ग्राफिकली समझेंगे इसको. ओके तो ग्राफिकली में देखो पेज नंबर 41 पे आपको पूरा दिया डेटा. जब प्राइस 50 था डिमांड सप्लाई 20 था. जब प्राइस 60 हुआ सप्लाई क्या हुआ 400 हुआ. जब प्राइस 70 हुआ तो सप्लाई कितना हुआ आपका 600 हुआ. प्राइस 80 हुआ तो सप्लाई कितना हुआ 800 हुआ. प्राइस 90 हुआ तो सप्लाई कितना हुआ 1000 हुआ. ओके सो अभी आप एक पॉइंट ले लो बराबर है पॉइंट ए बी सी. ओके बराबर ए में क्या है दैट इज द मिड पॉइंट. ओके ये है वो मिड पॉइंट है बी और सी के बीच में है जहाँ पे आपका 70 रुपीज प्राइस है. ओके और 600 रुपीज आपका सप्लाई है. ओके बराबर तो जब प्राइस डाउन हुआ 70 से 60 हुआ तो क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हुआ. जब 70 से 50 हुआ तब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हुआ. बट 70 से 80 हुआ तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई हुआ. 70 से 90 हुआ तो क्या हुआ एक्सपांशन ऑफ सप्लाई हुआ. बराबर है. तो इसको आप एबीसी में पॉइंट में आप उसको डिवाइड कर सकते हो. ओके तो जो मैंने आपको समझाया वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है. ओके ये हुआ आपका एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. अंडरस्टैंड दिस एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया. ओके नाउ वी डिस्कस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई. ओके सप्लाई इंक्रीज क्या होता है कैसे होता है डिक्रीज कैसे होता है. अब इसमें क्या होगा कि प्राइस में कोई फर्क नहीं आएगा. प्राइस कांस्टेंट प्राइस 1 रुपया भी हिलने वाला नहीं है. ओके पर अदर फैक्टर्स जो है वो सब सारे हिलेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई होगा. ओके सो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है अपने को. जब प्राइस 20 है सप्लाई कितना है 100 यूनिट से 100 kg. ओके प्राइस 20 है
तो सप्लाई कितना 200 यूनिट्स है, प्राइस 20 है तो सप्लाई कितना 300 यूनिट्स है, प्राइस 20 है तो सप्लाई कितना 400 यूनिट्स है। तो यहाँ पे देखो आपका सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। ओके, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, बराबर है। तो इसको आप 3 पॉइंट में जैसे ऊपर किया था वैसे 3 पॉइंट में डिवाइड कर दो एबीसी में। तो 300 मिड पॉइंट ले लो आप, बराबर 300 केजी ऑफ सप्लाई मिड पॉइंट ले लो, तो उसमें 20 रुपीज हो गया। तो 20 रुपीज क्या आपका कांस्टेंट प्राइस है। ओके, प्राइस में कोई 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। ओके, पर अदर फैक्टर्स इंक्रीज और डिक्रीज, अदर फैक्टर्स जो सप्लाई को जो इफेक्ट करते हैं उससे क्या होता है, सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होता है, बराबर है। अदर फैक्टर्स कौन से है, मेन तो दैट इज द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ओके, उसके बाद रूमर ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। ओके, उसके बाद प्राइस फैक्टर्स। ओके, उसके बाद लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है, उससे क्या होता है, सप्लाई भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो ये ग्राफ पेपर में देखो कि ये पॉइंट में आप ले लो 300 यूनिट्स केजी ऑफ सप्लाई और 20 रुपीज प्राइस है। अभी अभी आपका क्या हुआ कि 300 से आपका सप्लाई हो गया 200। ओके, वो तो क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई होगा। 300 से आपका 100 हो गया तो क्या हुआ, डिक्रीज इन सप्लाई होगा। बट 300 से 400 हो गया तो आपका इंक्रीज इन सप्लाई हुआ। 300 से 500 चला गया तो आपका इंक्रीज इन सप्लाई हुआ, बराबर है। सो ये होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, इन द above diagram, price is represented on y-axis and supply is on the x-axis. ओके, तो जो मैंने आपको पीछे समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इनिशियली सप्लाई कर्व्स is as S1 whereas price is rupees 20. The supply of apples is 300 kg, which is uh, depreciated by point A on the supply curve S1। तो यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया वही इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जब प्राइस आपका जो है वो सेम ही रहेगा, पर अदर फैक्टर्स चेंज होने से वहाँ पे सप्लाई में आपका इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ओके, जो फैक्टर्स उसको एडवर्सली इफेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, और उसको फेवर करेंगे तो आपका जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस इन द लॉ सप्लाई। ओके, द क्वेश्चंस that might not arise is, does the law of supply have expectations like the law of demand? Though several expectations are pointed out by some people, they are technically debatable. Okay, तो ये चर्चा हुई थी उस पे कि भाई एक्सपेक्टेशन जैसे डिमांड में है। ओके, does the law of demand have expectations like that? Law of demand through several expectations are pointed out in some people, they are technically debatable. ओके, तो यहाँ पे भी सप्लाई में भी वो पॉइंट्स है। ओके, एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉस सप्लाई arises when supply of goods rises when its price falls, and supply falls when price rises when other factors are held unchanged. ओके, तभी ये क्या होता है, हर एक गुड्स में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, रेयर केस में ऐसा होता है, तो रेयर गुड्स में ऐसा होता है। तो रेयर गुड्स कौन से लेट्स सी। Certain goods are rare and hence, even if there is a significant rise in their price, their supply does not rise. बराबर, प्राइस इंक्रीज होता है फिर भी उसका सप्लाई वो राइज होता नहीं है, उसका सप्लाई तो उतना ही रहता है, कांस्टेंट। ओके, फॉर एग्जांपल एशियन कॉइन्स। ओके, बराबर, एशियन कॉइन्स आप देखो, आपके पास 1000 पुराना कोई कॉइन हो, नोट हो, तो आपको इसके पैसे मिलेंगे, बराबर है, वो भी डॉलर्स में आपको मिलेंगे, बराबर। तो उसका जो सप्लाई है वो बढ़ने वाला नहीं है, प्राइस बढ़ेगा इसका। प्राइस आप जैसे जैसे साल पुराना होता जाएगा वैसे प्राइस बढ़ता जाएगा एशियन कॉइन्स के, पता है आपको। हाँ, तो यहाँ पे जो एशियन कॉइन्स होते हैं उसका जैसे जैसे साल बढ़ता है वैसे उसका प्राइस बढ़ता है।
ओके, पर उसका सप्लाई बढ़ने वाला नहीं है क्योंकि वो तो लिमिटेड अपने पास है, उतने ही रहने वाले, छपके आने वाले नहीं है नए। ओके, उसके बाद एशियन आइडल्स। ओके, बराबर। तो यहाँ पे जो मूर्तियां होती है, ओके, बराबर, तो जो मूर्तियां होती है वो भी, वो एशियन मूर्ति के रेट्स भी आपको चाहे उतने मिल सकते हैं। जितनी ओल्ड आपके पास स्टैच्यू होगा उतना उसका पैसा भी ज्यादा मिलेगा। ओके, उसके बाद ओरिजिनल मैन स्कल्पचर। ओके, यानी कोई किसी किसी ने पत्थर का स्टैच्यू बनाया, ओके, इंसान का। ओके, बराबर है। तो उसका भी जैसे वो अपने है ना, इसमें अजंता इलोरा में जो बनाया है, ओके, स्कल्पचर। ओके, तो उसके भी आपको जो आपके पास है तो उसको भी आपको पैसे उसके मिल सकते हैं। उसके बाद ओल्ड बुक्स है, उसके बाद एशियन हैंडीक्राफ्ट है, एक्सेट्रा। ओके, तो इन सब के आपको पैसे मिल सकते हैं। उसका सप्लाई बढ़ने वाला नहीं है, प्राइस बढ़ता जाएगा, पर सप्लाई तो वैसे इतना का उतना रहेगा क्योंकि आपके पास स्टॉक लिमिटेड होगा। ओके, however such goods do not have any current production, and therefore instead of considering these expectations to the law supply should be kept out of the study of स्टडी ऑफ सप्लाई। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जितना भी इसका प्राइस बढ़ जाए पर सप्लाई बढ़ने वाला नहीं है। ओके, बराबर है। तो ये सब आता है रेयर गुड्स में आता है। ओके, सो नेक्स्ट है दैट इज द प्राइसेबल गुड्स, बराबर। प्राइसेबल गुड्स में लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर। हाईली प्राइसेबल गुड्स लाइक मिल्क प्रोडक्ट, घी, vegetable, meat, eggs, fish, fruits, flowers, etc. can be stored for a long time. Okay, इसको आप स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल कि अभी तो स्टोरेज इतने अच्छे हो गए कि आप 99 ईयर्स तक उसको कुछ नहीं हो सकता। ओके, 99 ईयर्स तक उसको आप स्टोर कर सकते हो। Hence, even if their price falls, the supply will not contrast, and as they cannot be preserved and hence must be sold. However, in current times with availability of cold storage, even this expectations is debatable. यानी इसका मतलब ये है कि पहले अपने पास कोल्ड स्टोरेज नहीं थे तब उसको तो किसी भी हाल में तुरंत बेचना पड़ता था। ओके, चाहे वो फिर मिल्क हो, मिल्क प्रोडक्ट हो, घी हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, बराबर, तो उसको तुरंत उसको सेल करना पड़ता था। पर आज के तारीख में वो क्वेश्चन अभी निकल चुका है। ओके, तो आज के डेट में आप उसको स्टोर कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, डिबेटेबल हो गया भी, कंफ्यूज वाला क्वेश्चन हो गया भी। ये जो पेरिसेबल गुड्स है, ओके, तो उसका सप्लाई, जो सप्लाई है वो कैसा रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज हो सकता है। हाँ, तो डेफिनेटली इंक्रीज हो सकता है। जब प्राइस बढ़ेगा तो उसका सप्लाई भी बढ़ेगा। ओके, तो ये एक क्वेश्चन मार्क हो गया, डिबेटेबल हो गया ये, क्योंकि अभी तो कोल्ड स्टोरेज आ गया है। तो लोग, जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा, कोल्ड स्टोरेज में उसको रखेगा और ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा वो। जिसके पास जितना कोल्ड स्टोरेज होगा उतना वो उससे बेनिफिट कमा सकता है, पैसा कमा सकता है, बराबर है। उसको कहते हैं कोल्ड स्टोरेज। ओके, सो कोल्ड स्टोरेज के हेल्प से वो प्रॉफिट वो उसमें से कमा सकता है। प्राइस डिटरमिनेंट इन द मार्केट। ओके, प्राइस डिटरमिनेंट इन द मार्केट का मतलब क्या है? प्राइस डिटरमिनेंट explain the process of determining a stable price at which goods are actually brought and sold in the market. बराबर? Price determinant explain the process of determining a stable price at which goods are actually bought and sold in the market. बराबर? यानी एक स्टेबल प्राइस पे मार्केट में वो गुड्स होता है वो सेल और परचेज होता है। ओके, such determinations of price is done in all forms of market and is known as determination of equilibrium price level. ओके, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहाँ पे आपका प्राइस इक्विलिब्रियम हो जाता है। यहाँ पे नो प्रॉफिट नो कॉस्ट। ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं।
बराबर है. Now let's see what is equilibrium price. Okay. uh, lay persons may think that price are decided by the producer or seller. जो नॉर्मल इंसान वो क्या सोचेगा कि भाई ये जो प्राइस है वो कौन नक्की करता है, सेलर नक्की करता है, जो बनाता है उसको वो नक्की करता है. वह ऐसा नहीं होता है. प्राइस को नक्की करता है मार्केट मैकेनिज्म, जो मैंने आपको पहले ही बताया. ओके, बराबर है. जो प्राइस मार्केट में जो होता है वो मार्केट नक्की करता है, सेलर भी नक्की कर सकता नहीं है और परचेजर भी नक्की नहीं कर सकता. उसको मार्केट जो रेट है वो मार्केट तय करेगा. ओके, बट इट इज नॉट सो. Inevitable producers or sellers do not decide the price. Price are determined by the uh, interactions of market demand and supply. Okay, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर भी प्राइस फिक्स नहीं कर सकता और परचेसर भी प्राइस फिक्स नहीं कर सकता. मार्केट ही ऐसा है, वो मार्केट प्राइस फिक्स करेगा. ओके, सच सप्लाईज schedules and demand schedules moves in opposite direction. Equilibrium is attained only when the two curves intersect each other. Equilibrium कहाँ होगा कि जहाँ दोनों पॉइंट, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगे, वहाँ पे equilibrium होगा. No profit, no loss. Such a price prevail in the market, and individual sellers take this price at a signal of determined price of their individual produce in the industry. In perfect competition, firms take this price as given. In monopolistic and oligopoly market, this price takes as a signal. Even a monopoly has to take a price signal from the total demand and total supply. तो यहाँ पे मार्केट अलग अलग होते हैं बेटा. हर एक प्रोडक्ट के मार्केट अलग अलग होते हैं. किसी का मोनोपोलिस्टिक होता है, किसी की मोनोपोली होती है, बराबर है, किसी की ओलिगोपोली होती है, बराबर. तो वहाँ पे प्रोडक्ट के जो अलग अलग मार्केट्स होते हैं, बराबर. तो कोई जो होता है वो उसको सिग्नल ले लेता है कि भाई नहीं, ये इक्विलिब्रियम क्या है, इससे आपको नीचे जाना नहीं है या डेंजर लेवल है. ओके, इक्विलिब्रियम को कोई कोई उसको डेंजर लेवल लेता है. ओके, पता है कि इसके नीचे जाना नहीं है, इसके ऊपर आपको रहना है. ओके, तो प्रॉफिट कंपनी अर्न करेगी, अदरवाइज जो कंपनी है वो लॉस अर्न करेगी. ओके, अकॉर्डिंग टू मार्शल, द मार्केट डिमांड and market supply are called the invisible hand of markets, and the entire process is inevitable. The two cause for a cross as shown in the figure below. In the figure, demand curve DD and supply curve SS moves in the opposite direction. However, the intersection of point E, which called equilibrium point, at the point the equilibrium price is 30 EQ and quantity demanded and supplied is 600 units OQ, which is called equilibrium point. तो देखो यहाँ पे ग्राफ पेपर में दिया है. ओके, पहले प्राइस दिया हुआ है, प्राइस ऑफ कमोडिटी दिया हुआ है, सप्लाई दिया हुआ है. ओके, बराबर. पहले प्राइस 10, 20, 30, 40, 50 दिया हुआ है. प्राइस ऑफ कमोडिटी इन केजीस, सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन केजीस. ओके, सो प्राइस ऑफ कमोडिटी इन केजीस कितना है, 1000 है. सप्लाई ऑफ कमोडिटी उसके पास कितना था स्टॉक में, 1000 केजी था उसने. तो उसने क्या किया, 10 रुपये था, सिर्फ 200 ही सेल किया, बराबर है. जब 20 रुपया हुआ तो उसने 400 ही सेल किया. ओके, उसके बाद 30 रुपया हुआ था, 600 में से 600 उसने 2 मिनट, 600 में से 600 सोल्ड कर दिया. ओके, और 40 रुपया हुआ तो 400 में से, सॉरी, इसमें दिया है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई दिया. ओके, बराबर है. इसमें प्राइस लिखा है नहीं, प्राइस ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिमांड ऑफ कमोडिटी. ओके, उल्टा लिखा है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है. ओके, वो डिमांड ऑफ कमोडिटी होगा और उसके बाद सप्लाई ऑफ कमोडिटी, दोनों चीज अलग है. ओके, तो जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड प्राइस इक्विलिब्रियम. ओके,
तो वहां पे क्या होता है आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, सो डिमांड और सप्लाई का जो क्रॉस लाइन है, डिमांड और सप्लाई का जो क्रॉस लाइन है, जो इंटरसेक्शन होता है, ओके, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आपके व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है। ओके, सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट? कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट होते हैं, एक ही पॉइंट पे। ओके, वो कहता है आपका इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई। ओके, सॉरी, इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस। सो यहाँ पे लिखा है इफ प्राइस इज राइज बाय द इंडस्ट्री to rupees 40 by ignoring the demand and supply schedule, the total demand contrasts to 400 units from 600 units, while the supply expands to 800 units. Since demand is lesser than supply, as shown by the distance between point A and C, the market price will have a tendency to fall back to rupees 30. This is the equilibrium price of the market. तो उसको equilibrium point of the market कहते हैं. Now, if price is reduced by the industry to rupees 20 by ignoring the demand and supply schedule, the total demand expands to 800 units while supply contrasts to 400 units. Since demand is greater than supply, as shown by the distance between point D and point B, the market price will have a tendency to rise back to rupees 30. This again is the inevitable process of the market. तो इसको इन्यूटेबल प्रोसेस ऑफ द मार्केट कहते हैं। ओके, सो इन शॉर्ट में आपको याद रखना है कि जो लाइन क्रॉस होता है सप्लाई और डिमांड का। ओके, सो जो क्रॉस होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्राइस इक्विलिब्रियम। बराबर। सो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है। ओके।